امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایسا ہے کہ محافل میں کچھ لوگ خوشبو کیا ٹینک ایک لے کے اس میں خوشبو چھڑکاتے ہیں اور بعد میں پھر وہ لوگوں سے کچھ پیسے بھی وصول کرتے ہیں. جیسے ہی خوشبو لوگوں پہ چھڑکتے ہیں پھر پیسے بھی لیتے ہیں. تو ان کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ برائے مہربانی شرعی رہنمائی فرما دیں. دیکھا نہیں کبھی خوشبو چھڑکتے ہیں اور پھر پیسے بھی لیتے ہیں. اگر یہ کہیں ہے ایسا اور وہ پیسہ اپنی ذات کے لیے نہیں لے رہے, کوئی چندے کی ایسی کوئی ترکیب ہے اور مجبور بھی نہیں کرتے, خالی چندے کے طور پر وہ مانگ رہے, تو اس کو ناجائز تو نہیں کہیں گے. لگانے کا بھاؤ اب مانگ رہے کہ لگایا اب دینا پڑے گا, ایسا نہ کرتے ہوں. خالی جیسے چندے کی پیٹی یا رمضان ہمارے یہاں جمعے کی نمازوں میں جھولیاں پھرائی جاتی ہیں مسجد میں, عرف ہے لوگ چندہ ڈالے نہ ڈالے کوئی مطلب حرج نہیں ہوتی. تو اس طرح اگر یہ کوئی کہیں اس طرح کا کرتے ہیں تو اس میں تو کوئی جو بظاہر صورت جو میں نے عرض کی اس کے مطابق تو حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا سیدی جہانگیر حسین اتاری ملتان شریف سے عرض گزار. آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی کا کوئی نقصان ہو جائے تو کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے تو اب اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. تو لوگوں کا اس طرح کہنا کیسا ہے؟ میری اور میرے گھر والوں کے لیے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے. بہت بڑی جرت ہے. ایسا شخص اپنے آپ کو مقبول سمجھ رہا ہے کہ میری آہ اس کو لگ گئی, میری بددعا لگ گئی. تو یہ ایسی خوش فہمی میں رہنا نہیں چاہیے, بلکہ اس کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے. دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری پیاری مثالیں دی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی ایذائیں دی گئیں. تو کیا ہر ایذا دینے والا برباد ہوا, تباہ ہوا, بیمار ہوا, کہ ٹانگیں ٹوٹی, کہ ہاتھ پیر ٹوٹے؟ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اب اگر کوئی ہوا تو اللہ نے کسی سے انتقام لیا کہ اپنے مقبول کو ستانے پر, تو وہ ایک الگ صورت ہے جس کا تعین ہم کر نہیں سکتے کہ اس کو فلاں کی آہ لگ گئی اور یہ اس کا کنڈا ہو گیا. ہمارے ہاں یہ ہے رائٹ. تو یہ چلو کوئی کہتا ہے وہ تو کم درجہ اس کا. ہاں تو اپنے منہ سے کہنا کہ مجھے ستایا نا, سزا ملی اس کی. یہ تو اپنے آپ کی مقبولیت اور اپنی مطلب اپنے منہ میں مٹھو بننے والی صورت. ایسا نہ کہا جائے کہ میری وجہ سے اس کا ایسا ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدھی ایک سوال یہ موصول ہوا ہے, کہہ رہے ہیں نامحرم سے تعلقات رکھنے پر کیا کیا وعیدیں شریعت میں ارشاد ہوئی ہیں, یہ ارشاد فرماتے ہیں. تعلقات عام طور پہ جب بولا جاتا ہے تو اس سے تو نگیٹو تعلقات ہی کا تذکرہ ہوتا ہے. تو معاذ اللہ اگر کوئی اس طرح تعلقات رکھتا ہے تو اب جیسے وہ تعلقات اور جیسا اس پر اس نے عمل کیا اس کے مطابق گناہ کا ترتب ہوگا. اور اس کی ابتدا جو ہے نا, اس سے ہی ہمیں روکا گیا ہے کہ نامحرم کو سلام نہ بھیجے, نامحرم کی تعزیت نہ کرے, نامحرم بیمار ہو تو اس کی عیادت نہ کرے. یہ ہمیں اس سے منع کیا گیا, روکا گیا ہے کہ اسی طرح مطلب وہ لائن سیٹ ہوتی ہے, پھر آہستہ آہستہ بندہ آگے بڑھتا ہے. تو شروع سے اس پر شریعت نے روک لگا دی, علماء نے اس پر روک لگا دی کہ سلام بھی نہیں بھیجنا ہے. تو اب اتنی حد تک سلام بھیجنے کی حد تک جب ہے معاملہ تو اس کو وہ گناہ کی صورت تو نہیں کہا جائے گا جس میں پھر بد نگاہی ہوتی ہے, تو اس کا اپنا گناہ ہوگا. اس کو معاذ اللہ کو چھونے کی ترکیب ہے تو پھر اس کا گناہ الگ ہوگا. تو معاذ اللہ پھر اور کچھ آگے بہت یعنی کہ جو آدمی سوچ سکتا ہے تو اور بھی اس کے مطلب معاملات ہیں. تو جیسا وہ معاملہ کرے گا ویسا اس کا گناہ ہوگا. اس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ جیسے کہ کسی غیر محرم کے محاسن کو کوئی
देखे। महासिन माने खूबी वाला हिस्सा, और ये हर मर्द समझ सकता है खूबी वाला हिस्सा क्या क्या होता। तो उसको देखेगा तो इससे बेहतर है कि उसके सर में कील ठोंक दी जाए, और ये इसको ना देखता तो इसकी सजा। फिर आंखों में आग भरने की वईद के जो अपनी आंखों को हराम से पुर करेगा। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत नकल की कि उसकी आंखों में आग, उसकी आंखों में अल्लाह पाक क़यामत के दिन आग भर देगा। अल्लामा इब्न जूज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया कि ऐसे की आंखों में आग की सलाइयां फेरी जाएंगी जो ये बदनिगाही करता है, नामहरम को देखता है। तो ये नाम औरत को देखना इस तरह और अमरत को देखना, ये दोनों का हुक्म एक ही है कि अगर, अच्छा इसमें दोनों में यूं फर्क है कि अमरत को अगर गंदी लज्जत के साथ, मखसूस लज्जत के साथ देखेगा तो गुनाह है और वो वईदें वगैरह, और अगर ये नहीं है, उसकी नीयत में कुछ भी नहीं है ऐसी बुराई, तो देखने में कोई गुनाह नहीं है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से मुरसलन रिवायत है, कहते हैं मुझे ये खबर पहुंची कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखने वाले पर और उस पर जिसकी तरफ नजर की गई अल्लाह पाक लानत फरमाता है। यानी देखने वाला जब बिला उज्र इरादतन, बगैर किसी मजबूरी के जानबूझकर देखे, और दूसरा अपने को बिला उज्र, बगैर किसी मजबूरी के जानबूझकर दिखाए, तो उसके लिए ये वईद है कि अल्लाह पाक की उस पर लानत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दोज़खियों की दो जमाअतें ऐसी होंगी जिन्हें मैंने अपने इस अहद मुबारक ज़ाहिरी ज़माने हयात में नहीं देखा, यानी आइंदा पैदा होने वाली हैं। इनमें एक वो कौम जिनके साथ गाय की दुम की तरह कोड़े होंगे जिनसे लोगों को मारेंगे, और दूसरी किस्म उन औरतों की जो पहनकर नंगी होंगी, दूसरों को अपनी तरफ माइल करने वाली और माइल होने वाली होंगी। इनके सर बुख्ती ऊंटों की एक तरफ झुकी हुई कोहानों की तरह होंगे। वो जन्नत में दाखिल ना होंगी और ना उसकी खुशबू पाएंगी, हालांकि उसकी यानी जन्नत की खुशबू इतनी इतनी दूर से पाई जाती है। हवाला मुस्लिम शरीफ सफ़ा नंबर 1177, हदीस नंबर 125 और 2128। इसकी शरह भी है, इसमें पर्दे के बारे में सवाल जवाब में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। पर्दे के बारे में सवाल जवाब है या ये तो किताब है, और मुख्तसर सा रिसाला इस्लामी पर्दा, इसमें भी आयतें भी लिखी हुई हैं औरतों के बारे में पर्दे के ताल्लुक से, तो ये रिसाला जरूर पढ़ लें। और वईदें भी लिखी हुई हैं बेपर्दा औरतें इनकी, तो न मर्द औरत को देखे न औरत मर्द को बुरी नीयत से देखे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अब जैसे कि मदनी चैनल पर कोई देखती है औरत, तो अगर इसको किसी को देखती है और उसके दिल में कोई ऐसी जो मैं कहना चाहता हूँ उस तरह की कैफियत पैदा होती है और ये वो समझ सकती है, तो सांस बाद में लेना, फौरन वहां से उठना जरूरी है। ये सांस लेना इसलिए बोलता हूं, ये बिल्कुल क्विक, अब थोड़ा यूं देख लूं नहीं, अबाउट टर्न, पलट पड़े, बस इतनी ही इजाजत है देखने की कि जिसमें कोई मतलब है कि ऐसी कैफियत ना हो। ये है खतरे वाली बात, औरत का देखना बहुत खतरे वाली बात है। मैं तो यही मशवरे देता हूं कि नातें भी सुनना, नातों में तो वैसे एक तरह का जादू होता है, तरन्नुम में
नातें तो बड़े शौक से देखती हैं औरतें जो मजहबी अपने आप को समझती हैं, ये मजहबी नहीं होती, क्योंकि ये अपने फैन होती हैं किसी मखसूस नातख्वान की, उनकी तस्वीरें लगाती हैं, उनके कलाम वायरल एक दूसरे को भेजना और उनकी बातें करना नातख्वानों की। ये मेरी मालूमात हुई है, इस तरह ये करती है। तो ये अपने आप को मजहबी ना समझे, ये जहन्नम में जाने वालों की लाइन में खड़ी हुई है। नातों की आड़ में शैतान ने इनको पागल कर दिया है, बावला कर दिया है, बावली कर दिया है, कि जो ये नौजवान नातख्वानों को पसंद करती हैं। वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। सांस बाद में ले, पहले तौबा करें इस हरकत से, अपने पेजेस से, अपनी जहां भी इसको लगाया हुआ है सबसे हटा दें। आप नातख्वान नहीं, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम आशिक, हम इनके गुलाम हैं, नातख्वानों के नहीं। तो मैं इसलिए पसंद करता हूं कि जो नातख्वान दुनिया से चला गया, जैसे हाजी मुश्ताक हमारे मशहूर हैं, मरहूम है ये फौत, तो इनसे ये कैफियत का होना कम चांस है। उनकी नाते सुने, जहां ये कैफियत पैदा हो गई तो चाहे 100 साल का फौत शुदा है नातख्वां, फौरन बंद करना होगा। ये भी ध्यान में रखें, क्योंकि असल जो इल्लत, जो सबब है, वो वही मखसूस लज्जत है जिससे रोका गया कि इसको नहीं देखना है, नहीं सुनना। लेकिन ये तकरीबन हमारी मतलब जो मजहबी कहलाती हैं, ये नाते, हम तो नाते सुनती हैं, हम तो नाते सुनती हैं। नहीं नहीं, नाते नहीं सुननी। अल बयानो मिन अस्सहर, इन्न मिनल बयान लस्सहर, बेशक कुछ बयान जादू होते हैं। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। तो ये बयान, तो ये नात शरीफ बयान की इंतहाई सूरत है, यूं समझ लो कि इसमें तरन्नुम होता है। तरन्नुम में कशिश बहुत ज्यादा होती है और आम गुफ्तगू में वो कशिश नहीं होती। नातख्वान जब बात करेगा ना, तो उसके बात में सुरीलापन इतना नहीं होता। जब ये अपनी ले बनाता है तो उस वक्त फर्क पड़ जाता है काफी। तो मेहरबानी करके इस्लामी बहनें अगर ऐसा करती हैं तो जिंदा नातख्वानों को मत सुने, मत सुने, मत सुने। ये सुनती है, वो सुनती है, उसकी बेटी सुनती है, उसकी पोती सुनती है, ये दलाइल ना दिया करें। आपने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, मैं उसकी शरीयत की बातें कर रहा हूं। अब चाहे वो मैं ये गलतियां करता हूं तो मैंने भी जवाब देना इसका। ये करते हैं, वो करते हैं, फुला करता है, फुलानी मुबल्लिगा करती है, फुलानी जिम्मेदार करती है। अपनी खबर में ये जवाब दे होंगी, आखिरत में ये जवाब दे होंगी। आपने अगर इनका कलमा पढ़ा है तो फिर हम आपको समझाएंगे भी नहीं, हम तो सिर्फ कलमा एक का ही पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो मेहरबानी करके, बहुत मरूम नातख्वान है जिनके कलाम हैं। मैंने तो कई मरूम नातख्वानों के कलाम छाट छाट कर अपने खानदान में भेजे हैं, मरहूम हो गए। मेरे पास जितने मरहूम नातख्वानों के कलाम होंगे शायद ही किसी के पास हो। मैंने इन्हें कसदन ये कहे कि अगर जमा करवाएं, नात सुनना शौक है तो सुनो। और बेहतरीन नातख्वान है, ये भी नहीं कि वो बोलोगे आवाज, जबरदस्त आवाजों के नातख्वान ऐसे मरहूम हैं। जैसे हाजी मुश्ताक भी माशाल्लाह, बुलबुल रोज़ा रसूल, कितनी प्यारी आवाज है कि सुने ना, मजा आ जाए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।